true visionary speaker. He's a master of environmental sustainability, and our guest speaker has a very good career for innovation solution and different type of workshop, which are being the actually the need of present era. So in this continuation, we are going to arrange this important workshop. So our guest speaker, engineer Zulfikar Saab, is a certified master trainer of quality management system and different type of ISO management system, health and safety management system, and he won a company which is known as ZAD International, which is affiliated in with the Canadian International, Canada International. So with all these, he has more than 4 decade experience of these type of workshops and all these activities. So today we will sharing his insight how he can create a more sustainable future through innovation and collaboration. Please join us giving a warm welcome to our exceptional speaker, Engineer Zulfikar Saab. Please, Engineer Saab. Assalamualaikum and good morning everyone. नदीम साहब ने कोई ज़रूरत से ज़्यादा मेरी तारीफ कर दी है. मैं इतना भी काबिल नहीं हूँ जितना उन्होंने कहा है. I am still in the learning phase of my life. Every day I learn and there is something new for me too. मेरा वो कंप्यूटर का कोई एकदम खास बैकग्राउंड नहीं है. सिर्फ अपना प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, वर्ड में कुछ फाइलें बना लेते हैं. But recently I got an invitation from Institute of Engineers Pakistan. तो उसमें IT के ऊपर थीम था उनका और कॉन्फ्रेंस या एप्लीकेशन हेल्थ सेफ्टी 2 हफ्ते पहले. तो बहरहाल and I tried to make a presentation for that event. नदीम साहब ने मेहरबानी उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया और कहा कि नहीं आप हमारे एडमिशन. दिस इज नॉट द सेम वन, ये मैंने चेंज की है. ठीक है, ये नहीं कहेगा वही नहीं बता रहा हूँ. उसमें मैंने इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में AI का भी दिया है और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी दिया है. बहरहाल लॉट ऑफ थिंग टू बी इम्प्रूव. इस प्रेजेंटेशन को और इम्प्रूव करना है और आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट चाहिए मुझे. उसके बाद आप किस तरह मुझे गाइड कर सकते हैं कि कैन इम्प्रूव फर्दर एंड फर्दर. सो बेसिकली आई एम इंजीनियर विद लॉ एंड MBA. I work in PCSIR for 33 years. I'm a freelance trainer and teacher in various universities and institutions. Mostly I work for public sector organizations, not for private sector. पैसा कमाना मेरा नहीं है. ठीक है, ओके. तो आजकल मैं एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी अलिया कौशल नहीं, उसके बाद प्रोग्राम डेवलपमेंट कोर्सेज डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे. MS वेलनेस, MS हेल्थ केयर, MS एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी, 3 प्रोग्राम है उनके साथ फ्रीलांस अटैच. कोई वो नहीं है. थैंक यू. तो मेरे ख्याल में मैडम आपसे शुरू करते हैं, अपना तारुफ और शुरू करते हैं. अपना बैकग्राउंड थोड़ा बता दीजिएगा प्लीज. आई एम फुरत उलैन और कैन यू हियर मी? हाँ जी, आप भी कहें. और आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश लिटरेचर. और उसके बाद जो है आई हैव वर्कड इन PIA फॉर अबाउट 25 इयर्स. फिर मैंने जरा अर्ली रिटायरमेंट ले ली और आजकल घर पर हूँ एंड आई एम डूइंग सम सोशल वर्क. Very good. That means you are from Hyderabad or something? Hyderabad से. My father, he was the first dental surgeon of Liaquat Medical College. Well, my entire education is from Hyderabad. Secondary school, model school, public school, Darani Engineering University. Mashallah, good. That's good. Please. My name is Nishat Nazi. I passed my intermediate from St. Lawrence College, then graduation in microbiology, biochemistry from Karachi Islamia Science College. Now I'm SP in PIA and still working in PIA. Mashallah. Field के PIA में आपकी? Come again? What special department you are working in? Flight services. Yes.
My name is Samit. I am affiliated with Jadal of CSP. MashaAllah. My name is Sayyida Maniba Fatma. I am doing Bachelor in Microbiology. MashaAllah. जी बेटा. My name is Varisha Ahmed and I am doing Bachelor in Microbiology. My name is Maya Sheikh and I am currently in the final year of Bachelor in Microbiology. तो माइक्रोबायोलॉजी आज मैं ऐड कर दिया है. जी मैम. My name is Kiran Khan. I am MS PhD student, public health. Oh, great. MashaAllah. That's great. Where you are There is a doing? one program in my course, occupational health. So therefore I am interested in artificial We'll meet intelligence. after the lecture. I am Asma Khan. I am doing MPhil from Biochemistry Department, University of Karachi. I am doing PhD in molecular medicine. MashaAllah. MashaAllah. PhD, very good. MashaAllah. My name is Mohammad Furqan and I am doing BSc. Sir. So my name is Mohammad Tahir Khan. Basically, I am representing garment sector and I am a lead compliance manager there. Oh, MashaAllah. So during occupational health and safety, I am quite eager to know what's the role of AI. Oh, MashaAllah. I'll learn from you too. So I am here to learn from you. We appreciate each other. We appreciate each other. Man. I am Better. Aisha and I am doing my MPhil in organics. MashaAllah. MashaAllah. My name is Adila Akbar. I am a PhD student in analytical chemistry at MashaAllah. You better. Samina, I am doing Bachelor in Biochemistry. I am Hina Sadeem. I did my master's from University of Karachi. जी मैम. I am doing MPhil from Biochemistry Department. MashaAllah. Sir, I am Shazli. I am doing BS Chemistry from Jannah University from Samsung, sir. My name is Saraswat. I am doing Bachelor in Organic Chemistry. All of this. I am Sayyid Usama and I am a student. I am doing my BS research at HEJ. MashaAllah. Thank you very much for all of you and for coming here, and thanks to the Lim Sir for giving me opportunity and LEG and ISSP. Since last 3 years, kind enough to give giving the opportunity frequently. Okay, today we are here. Okay, topic is role of artificial intelligence. What is intelligence? और what artificial कैसे हो गई? From many other sources. Okay. In transforming the what's occupational health? और सिर्फ दो है ना? I am asking what is occupational health? First question. What do you mean by खराब में? ठीक है. और what is occupational health? जहाँ आप काम कर रहे होते हैं तो जो भी क्या है घर, you are working from home or you are working organization in factory, so वहाँ पे जो आपके health effects होते हैं, जो due to that particular job, तो वो आपके वहाँ पे अपने health को maintain करना होगा, ठीक है. And there is occupational health, occupational safety. What is occupational safety? Workplace safety को जहाँ पे आपको proper वो जो follow करते हैं वो ठीक है. और there is also one word which is occupational environment. In the environment you are working. Yeah, so the actual safety and environment लाजिम मसलूब में दोनों एक साथ. इसलिए अभी ज़्यादातर कोर्सेज जो आते हैं वो HSE के नाम से आते हैं. हमारे यहाँ रीजन में कनाडा में EHS कहते हैं, environment health and safety. अमेरिका में SHE कहते हैं, safety health and environment. कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, बात एक ही है. बात क्या है कि तो safe working environment. This is your basic right. It's your fundamental right to return back home safely. ये आपको पता है. या तो घर से निकलते हैं काम के लिए तो घर पर वापस आने आपका और घर में सेफ्टी. ओके, मेरे लिए भी नया टॉपिक है क्योंकि मुझे ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है कंप्यूटर में. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और एनी हाउ आई टुक द चैलेंज एंड ओके. ये एक पिक्चर है. इस पिक्चर में आप लोग क्या देख सकते हैं?
इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? जो कुछ पूरी प्रेजेंटेशन जो है बेस्ड ऑन दिस है, इस पिक्चर के ऊपर है, एक ही पिक्चर के ऊपर। रोबोटिक्स मशीन, एक रोबोटिक हैंड है और वो कोई मशीन बना रहा है उसमें क्या आपको फोकस। चलिए बाद में डिस्कस कर लेंगे, चलते हैं आगे। लेट्स मूव फर्दर। हमारे कंटेंट्स क्या है आज के? हमारे आज के कंटेंट्स में हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थोड़ी सी बैकग्राउंड मैंने दिया है इसमें आपको, जो मुझे खुद को नहीं मालूम था इसलिए मैंने उसमें दिया है। एवोल्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी, artificial intelligence powered risk identification and method, बहुत important identification method, बहुत important आपके वर्क प्लेस पे हर जगह, ठीक है। केस स्टडीज एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है, फ्यूचर डायरेक्शन एंड फिर कंसिडरेशन। अच्छा, हम ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करने आए हैं। इस कमरे का आप जायजा लें और मुझे बताएं इसमें क्या चीज़ की कमी है। फायर एक्सटिंग्विशर। ये रहा, अच्छा, ओके। वो रहा, एक्सिटी है। मेरे सामने अगर हम नहीं पता पर्दे के पीछे एग्जिट है या नहीं है, हाँ, एक और एग्जिट होती है। इन केस दिस एग्जिट इज ब्लॉक, यू हैव अ एग्जिट। आई एम श्योर पर्दे के जरूर विंडो वगैरह जरूर होगी, ठीक है सर। एक एग्जिट इसके है एग्जिट है ना, क्योंकि हमारी ऑलरेडी बड़ी जो है ना, हाँ वहाँ छुपा हुआ है पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे अगर मेंशन होना चाहिए। हाँ मेंशन होना चाहिए, सही। या मेंशन होना चाहिए कि पर्दे के पीछे पर्दे के पीछे क्या? Okay, let's move forward. Actually, मैं समझा 3 घंटे का, अभी बम चल गया था 2 घंटे पूरा करना है, वो I have to move it a bit faster. ये क्या नजर आ रहा है आपको? सर्किट लग रहा है, सर्किट ब्रेन लाइन, टीवी का चिप ब्रेन जैसा, आर्टिफिशियल ब्रेन, आर्टिफिशियल। ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर है और मुझे खुद अब एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी छोटा मोटा इंट्रोडक्टरी एआई का कोर्स कर लूँ ताकि पता तो पड़े एआई है क्या। चैलेंज तो ले लिया मैंने, लेकिन आई शुड हैव नॉलेज अबाउट दैट। ठीक, तो ये हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल ब्रेन है, ये आपको चिप्स लगे हुए, हाउ इट्स वर्क इट एंड ट्रेसिंग एआई माइलस्टोन एंड सोसाइटिकल इम्पैक्ट ओवर द टाइम। तो ये अर्ली कंसेप्ट तो मॉडर्न इनोवेशन है, ठीक है। हम कहाँ जा रहे हैं, अल्लाह गॉड नोस, मे बी वी आर गोइंग टू एंड ऑफ द वर्ल्ड, आई एम नॉट श्योर, बट होना तो है। अच्छा देखिए इसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गोज बैक 1000 of years, आज की नहीं है। लेकिन कोई भी आइडिया आता है कहीं ना सोच पहले से होती है, लेकिन प्रैक्टिकली शेप अभी आता है। So here the ancient philosopher considering question of life and death, ठीक है। In ancient times, inventors built things called automatons। उन्होंने बनाई थी एक चीज, मैकेनिकल रोबोट टाइप की बनाई थी जो स्टीम और पानी से उससे चलती थी, पंप टाइप की थी, which were mechanically and moved independently of human intervention. So things were there। अब ये जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पे हम आ गए हैं, तो चीजें बढ़ती जा रही हैं। द वर्ड ऑटोमोटॉन कम्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक एंड मींस एक्टिंग वंस ओन विल, अपने विल पे चल जाओ, कोई आपको कमांड करने वाला नहीं है। वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ एन ऑटोमन कम्स फ्रॉम 400 BC बिफोर क्राइस्ट and refer to the mechanical pigeon created by a friend of the philosopher Plato। उसके दोस्त ने बनाया मैकेनिकल पिजन बनाया। Many years later, one of the most famous automaton was created by
लियोनार्डो डी विंसी अराउंड ईयर 1495। तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि कहाँ से शुरू हुई। हम तो कहते हैं यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 30-35 साल पहले शुरू हुई है, लेकिन नहीं, आइडियाज केम बिफोर दैट। अब आइडिया को मैच्योर होते टेक टाइम। कोई भी इनोवेशन होती है, इन्वेंशन होती है, वो टाइम लेती है, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट बन जाती है कोई चीज। ये तो हम अंडरस्टैंड कर गए कि द रूट्स ऑफ artificial interest back to ancient math and philosophical ideas about intelligent being, foundational mathematics and logic. Basically क्या? Mathematics and logic used in teaching. Okay. And the influence of early computational machines shaping initiative. जो मशीन बनी थी शुरू में, मैं अपना एक्सप्लोजर बताता हूँ कंप्यूटर के साथ। Once I was working, I worked with a possibility R&D organization में Python सबसे बड़ी। I asked my DP, how I manage computer. And क्या करोगे? कंप्यूटर से काम चला, and that person of PhD in physics, he replied me that. Fortunately, I had a project and a project document. उसमें मेरे पास funds थे जिसमें I can consider things. So I bought one PC. It was in 1996. The machine came on my table that day. I don't know how to on now. Very frankly. On off कुछ नहीं है क्या हो रहा है। लोगों पे डॉस में जाती थी ज़माने, फिर 3.1 में जाती थी, लोगों पे माउस पकड़े तो भाग जाता था यहाँ से यहाँ। समझे ना? क्या करें? I called that guy who supplied me. मैं क्या करूँ? सर ये गेम लगाइए, आप गेम है। मैंने भाई गेम खेलने के लिए है। लेकिन जब आप गेम खेलेंगे तो माउस का कंट्रोल आपको खुद ब खुद आ जाएगा। तो दिस वाज शॉर्ट, फिर हमने एक शॉर्ट कोर्स लिया थोड़ा बहुत इसमें, फिर मुझे वर्ड्स पे काम करते, फाइलें बनाते, डाटा टाइप करते हैं। Then I went to the guy and I did a friend of mine over there. फिर आया हार्डवेयर का कोर्स कर लेते हैं। हार्डवेयर का कोर्स कर लिया, फिर become a moment anyway, let's move forward. Change हो जाता है। Okay. Ancient math and philosophical ideas. ये आप देख रहे हैं, ये मैं आपको कुछ नजर आ रहा होगा इसमें। Imagine artificial being क्या है? आर्टिफिशियल है क्या? वैसे तो आजकल हर चीज आर्टिफिशियल है। सर क्या कहते हैं आप? तो हमारे लाइफ में हमारे बिहेवियर भी ऐसे ही आर्टिफिशियल है, नेचुरल कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, नेचुरल कुछ नहीं है। अब तो माँ भी जो है ना बच्चे को फोन पकड़ा तो फेसबुक पे बैठी होती है, तो हर चीज बिकम आर्टिफिशियल हो गया सर। तो एंशिएंट मैथ्स included stories of artificial being and automata created by humans or gods. तो उस ज़माने ग्रीक मैथोलॉजी होती थी जिसमें गॉड्स कहते थे, गॉड ऑफ विंड, गॉड ऑफ लाइट, हर चीज़ का गॉड एक होता था। तो मैथ्स में वो कहते थे जी गॉड क्रिएट की गॉड से। एंड सिंबलाइज अर्ली क्यूरियोसिटी अबाउट सेंटर। एक जिस तरह की क्यूरियोसिटी थी क्या है, फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन क्या था? Philosophers explored the nature of human intelligence. वो देखते थे इंसान कितना ज़हीन है, क्या करता है, और वाकई इंसान को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। इंटेलिजेंट रीजनिंग, इनिशिएटिंग द कंसेप्चुअल डिस्कशन एंड फॉर्मिंग।
ठीक है, रीजनिंग होती है, डिस्कशन होती है, इंसान आइडियाज होते हैं, जब आप डिस्कस करते हैं आपको बहुत कुछ आता है, और वहाँ से आइडियाज बनते हैं, फिर वो आप कंसेप्ट जो आप उसको आप कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल्स में लाने की। जो आप रिसर्च कर रहे थे क्या कर रहे थे, यही कर रहे थे, आप एक खाका देते हैं जिसके ऊपर आप करते हैं और उसको प्रैक्टिकल्स में लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, एंशिएंट राउट्स क्या थे? The conceptual automons stretch back to the ancient civilization or architects of Tarraton by spelling and pronunciation mistake. I'm sorry for that. In the 4th century BC is credited with the creating a wooden pigeon powered by steam or compressed air. Heron of Alexandria in the 1st century CE detailed various water-powered, wave-driven and steam-powered automata. Chinese also developed mechanical orchestras and others automated device as early as 3rd century BC. तो ये थोड़ा सा जा रहे हैं, we'll go quickly. Alexandria engineering, city of Alexandria under Greek rule became a center of development with engineers like Sisyphus and Heron designing impressive hydraulic and steam power device. These were used in a religious ceremonies, puppet theaters, and as well as symbol of human mass over the nature. Then show off का था दिखाया था और फिर medieval and Renaissance Ottomans continued to evolve during the period with notable examples like mechanical bomb from the 16th century and Leonardo da Vinci mechanical knight. Islamic golden age. अच्छा, आप अगर देखें हर सब्जेक्ट में, स्पेशली साइंस एंड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री में, तो इस्लामिक स्कॉलर्स का बहुत बड़ा रोल है. अनफॉर्चुनेटली जो 300 साल बैंड लगा पब्लिशिंग ऑफ द बुक्स, उसने हमें पीछे धकेल दिया. ये डिजिटल क्लियराइजेशन जो प्रिंटिंग मशीनें से नहीं चलता है, तो उसके बाद हम 300 साल तक कोई भी बुक पब्लिश नहीं हुई. इसमें यूरोप जो है हमसे वो बेसिकली वो हमारे थीम्स को लेके वो आए थे. सो इस्लामिक गोल्डन एज, इस्लामिक वर्ल्ड आल्सो saw significant advancement in technology during the golden age. The Banu Musa brothers in 9th century documented various automata in their work, including clock and fountains. Okay. The early and their development. The term algorithm. कितने लोग इस टर्म से आगे हैं? Just know the term only, algorithm. मैथ्स पढ़नी होगी ना? मैथ्स में ये पढ़. बहुत सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगता है, ये लगता है. तो सर आपको क्या लगता है? मुझे तो समझ की आती बहुत मुश्किल लगता है. ठीक है, इसलिए हमें जो मैथ्स पढ़ाई जाती है हटाया जाता है, हमें कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता है. अगर आप कॉन्सेप्ट देकर पढ़ाएं ना बच्चे को, तो अगर रटा लगाए तो हम भी पास रटा लगा लेते हैं, चले भाई काम हो गया. ओके, सो term from the name of Muslim Persian polymath Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, who lived from the late 8th to mid 19th century. He is considered the inventor of concept of algorithm, particularly in the context of mathematical problem solving. His work on algebra and step-by-step procedure for solving equation laid the foundation of what we know, understand. ये थोड़ी इसी के बेस पे कंप्यूटर भी वर्क करता है, और कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस बनाई जाती है उसको सारा कुछ इसी पे ही होता है. Algorithms are the fundamental building block for artificial intelligence. They provide step-by-step instruction and rules involved in a system to process data, learn, make decision and perform tasks. चलिए 18th century के बाद क्या हुआ? 18th century witnessed the creation of elaborate automatons like the silver swan, a mechanical bird that trained itself and appeared to catch the fish. जो हम देखते हैं ना, बर्ड आता है और करता है, इस तरह उन्होंने मैकेनिकल बनाया. और then auto become increasingly sophisticated and were used for entertainment, scientific demonstration, even as inspiration for early concept of robots. तो यहाँ से शुरू हुआ. चल फॉर्मल सिस्टम डेवलप कहाँ से हुआ? जॉर्ज बूथ.
He is credited for latest आजकल वर्ड में created a formal logical system that underpin modern computation. Their computation theory है Alan Turing developed theories, modeling, computation and algorithm foundation to computer science and AI. And Sprayer's the foundation like formal logic and computation theories, essential for artificial. ये सारे मैं आपको जरा थोड़ा सा ये है क्या मुझे भी नहीं मालूम था, मुझे पढ़ना पड़ा. इन्फ्लुएंस क्या था? प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटर मिड-20. अब हमारे पास आ गया एक चीज मशीन आ गई. Sensory computer introduced programmability that enable complex machine problem solving environment. The foundation and AI implementation. These computers provided practical tools allowing the implementation of AI concept and experiment. मुझे याद है कि जब हम इंजीनियरिंग में गए थे 1976 75 में इंटर किया था. एक साल वो जो वेट की जो होता है एडमिशन और वो रिजल्ट आया, एडमिशन क्लासेस शुरू हुई. तो उस जमाने में उससे पहले बच्चे स्लाइड रूल यूज करते थे, वेरी कॉम्प्लिकेटेड. फिर कैलकुलेटर आया और उस जमाने में से शार्प का दैट टाइम 900 एक अमाउंट था. रेट 70 के ऑफिस में रखा में 4-5 सौ रुपये. लेकिन पेरेंट्स को वो मोहब्बत होती है बच्चों से, वो हर चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने बनाने चालू है था रहेगा इंशाल्लाह. अल्लाह ने कभी कोई तकलीफ नहीं दी, करम में मालिक समझे. अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? वर्ष का भी नहीं पता इसको होती है. ये एक्चुअली 1956 में लॉर्ड माउथऑन्सवर्थ थी, उसने इंट्रोड्यूस किया टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिशियल पहले. ठीक है, डिफाइनिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ मशीन इंटेलिजेंस. इसमें रिसर्चर्स ने इसको कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किया, मशीन क्या होती है, क्या नहीं कर सकती है. यहाँ से आपको ऑफिशियल जो है फाउंडेशन शुरू हुई. क्रेडिट गोज टू जॉन मैकार्थी who developed ISP and Pony AL program language to enable. ESTA फिर फाइनेंशियल थ्योरीज है, मॉर्गन मिन्स्की ने कंट्रीब्यूट किया उसके अंदर, और एलन नेवल ने ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंप्यूटर मॉडल पे. तो ये मुख्तलिफ लोगों की काविशें हैं जिन्होंने अपना इनपुट दिया, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बनी है अब तो दुनिया में छा गई है. Now we are using an average scale of life. उसमें एक चीज़ अच्छी हो रोमिंग अर्ली प्रोग्राम सक्सेसफुली चेयरन था. गेम प्लेइंग कैसा थी हर चीज़ हुई है. आप गेम में सिर्फ शुरू होती है. आप देखिए पहले बच्चों को गेम पे लगा जाता है, फिर बच्चों को बहुत सा एडिक्शन भी हो जाती है, फिर गेम से वो प्रैक्टिकल भी आते हैं. एक गेम प्लेयर नहीं उसके अंदर एडिक्शन बहुत है. हम जो कहते हैं बाकी जो नार्कोटिक्स वगैरह, लेकिन गेम की एडिक्शन जो है ना सबसे खतरनाक. तो आप घर में बैठे कहीं नहीं जाए लगे बच्चा खुल रहा है, और इसको आजकल होता है बच्चा रो रहा है मोबाइल फोन पकड़ा दिया, बच्चे हाइपर बन जाते हैं. मैंने तो अपनी फैमिली में देखा है, ऐसी बात नहीं है. हाँ जी, हम आ गए अपने मेन टॉपिक पे. सो व्हाट यू नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कितने आप इसे जानते हैं, कितने कंप्यूटर साइंस में कमांड रखते हैं? मैं तो नहीं रखता भाई जी, कोई भी नहीं. ऐसा नहीं करें, बस बता दे जी, कैसे नहीं लगेंगे. कंप्यूटर साइंस में कमांड तो नहीं है, लेकिन एआई से रिलेटेड मुझे छोटा नाम है. उसको सीखने का भी शौक होगा. यस, आजकल बहुत सी फ्री सॉफ्ट मिल जाते हैं कोर्सेज ऑनलाइन, तो उस पर आप यू कैन स्टार्ट इट, सर्च करें वो मिल जाएंगे. तो अपने फाउंडेशन उसमें मैं भी सोच रहा हूँ देखो क्या है. सही है, देखिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, और मैं आज फ्रीक्वेंटली हर साल कोशिश करता हूँ अपने आप को अपग्रेड करने के लिए. अभी फील्ड में ओके जी. ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी
has evolved scientifically over the time, shifting from manual risk identification to more systematic approaches. Despite progress, challenges remain that necessitate innovation and technological adoption to enhance workplace safety. Challenges are है हमारे पास. अब 100% कोई भी नहीं क्लेम कर सकता कि हमने कंट्रोल कर दिया. क्यों सर, क्या कहते हैं? Sorry sir, I just joined. और in occupational health and safety में nobody can claim 100% को कर सकता. Anything can happen anytime. Risk is there. Assessments are important. Of course. AI का रोल है इस वक्त. ये काफी हमें हेल्प करेगा. I'm quite curious कि AI का कहाँ पड़ा है. Assessment भी कितना रहता है. Okay, what is risk? Risk क्या है? Maybe ऐसी चीज जो आपके लिए harmful थोड़ा सा हो सकती है, maybe. Risk तो है. That is hazard. Hazard. The risk is the likelihood that can hurt you. Uncertainty. एक वर्ड में डिफाइन करेंगे. Uncertainty. संस्कृत से सही है. उस ट्रेन में वो सोचेगा, समझेगा, भूल जाएगा, बाहर निकलेंगे तो भूल चुके होंगे. यार जाएंगे तो बिल्कुल ही भूल चुके होंगे क्या बोला था उन्होंने. लेकिन एक वर्ड है रिस्क इज इम्पोर्टेंट. अनसर्टेनिटी. क्या होगा? आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, क्या होगा? You will be able to safely cross or you will be some kind of accident. It's uncertainty. Chance तो लेना पड़ता. चांस तो लेंगे तो फिर पॉसिबल. लेकिन एडवांटेज, यू आर वेलकम टू टेक दिस चांस. आप छत से जंप लगा ले, बोले मैं बच जाऊंगी, तो क्या क्या है? बच जाएगी. टांग तो टूटेगी कम से कम. अगर सर नहीं टूटेगा टांग बहुत टूटेगी. चलिए थोड़ा सा बीच में होना चाहिए. तो मैं भी रिफ्रेश हो जाता हूँ, आप लोग रिफ्रेश. क्यों लेक्चर में अमूमन लोग जो है ना, जब तो उनको, इसलिए मैं ऑनलाइन लेक्चर का फायदा नहीं. ऑनलाइन पता क्या होता है? एनपीवी कराता हूँ कोविड के बाद से. हम तो दिमाग में अच्छा, आप दिमाग के साथ बोले जा रहे हैं यार. आज रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता. लोग अपने अपने काम कर रहे होते हैं और ज्वाइन करने के बाद. तो आज नॉट ग्रेट फैन ऑफ ऑनलाइन. हाँ मजबूरी, हाँ हाइब्रिड हो, चलो ठीक है, फाइन. जो नहीं दूर दराज में नहीं आ सकते, फाइन, दैट्स गुड फॉर देम. चलिए जी, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में आप क्लियर? ये कहाँ अप्लाई होती है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, या सेफ्टी कहाँ अप्लाई होती है? घर में चूल्हा ऑन करके छोड़ दे रात को, कैसा रहेगा? सुबह उठ के आपने लाइट जला नहीं तो क्या हुआ? लास्ट हो गया और मुसाफिर ठीक. ये होगा. चलिए, थैंक यू. पहले क्या होता था? आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले क्या होता था? रेवोल्यूशन में क्या हुआ? 6 साल के बच्चे काम करते थे, रश्मि हो जाता, मर जाता, कैंडिल दूसरा ले जाते थे. ये भी हुआ. कहा जो आज चैंपियन है ह्यूमन राइट्स, ये होता है. मैनुअल इंस्पेक्शन क्या? It is a risk identification traditionally depend on manual inspection to detect hazard in workplace. जो सर ने बात की थी hazard के लिए. ठीक है. तो hazard को क्या? आपने आइडेंटिफिकेशन. hazard क्या है? जी बेटा. और harm क्या करता है? नुकसान वैल्यू करता है. ठीक है, वेरी गुड. ओके, ठीक है. तो मैनुअल इंस्पेक्शन था. फिर एम्प्लॉयज रिपोर्टेड रिस्क बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन, ऑल्दो दिस अप्रोच वाज सब्जेक्टिव एंड इनकंसिस्टेंट. अच्छा, इसके लिए एक और चीज़ भी है जो आजकल यूज होती है, मैं भी बता रहा हूँ. तो चेक लिस्ट यूज है. अब वो ऑडिटर जो आता है ना, वो चेक लिस्ट को यूज करता है और कर जाता है. ठीक है. आई एम नॉट ग्रेट फैन ऑफ डूइंग ऑडिट. मैं नहीं करता. ऑडिटिंग डिमांड.
अब आपके पास ऑडिट करने आऊँगा तो आपको सर हमें एवरीथिंग मूवी करते हैं। बड़े सालों का लास्ट से मैंने एनपीओ में ये की थी उनके रिक्वेस्ट पे, सर आप प्राइवेट फर्म से नहीं करें, आप हमारे साथ 15 साल से सोसाइटी प्लीज़ हमारा ऑडिट करते बैंकिंग में थी वो एक टॉल इंडस्ट्री थी, फिर मैंने उनको ऐसे सेक्टर डिपार्टमेंट की ऑडिट करी। मैं आपका एनपीओ में ये कर रहे हैं, चलो ठीक है। तो उनके लॉजिक सही था, बोला हम फिर उनके साथ डील करेंगे, आप हमें ओके। तो उसमें फिर उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी ऑडिटिंग की, तो वो दैट्स व्हाई, अदरवाइज वो कहता है कैसे सर यही होता है समझ गया ना पॉइंट। दैट्स द पॉइंट आई डोंट वांट टू ऑपरेट। ओके जी, क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं? चैलेंजेस फेस बाय द कन्वेंशनल ऑक्यूपेशन हेल्थ, जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है। सबसे बड़ा चैलेंज है डिलेड हैजर्ड डिटेक्शन, हैजर्ड को डिटेक्ट करना। Conventional method often detect hazard too late, reducing opportunity to prevent incident. What is the incident? हादसा नहीं, कोई लम्हा जी अनएक्सपेक्टेड कुछ यहाँ से किसी के कुछ कहा न्यू इवेंट, कुछ भी नया होना, इंसिडेंट होना। What is accident? हादसा हादसा जो हो चुका हो चुका, हादसा हो चुका। शादी हो गई, हादसा हो गया, अगर बच गया तो इंसिडेंट। इंसिडेंट है, इंसिडेंट एंड नियर मिस तकरीबन एक ही टर्मिनोलॉजी में यूज होता है कि आप बाल बच गए। यस, और एक्सीडेंट फॉर एग्जांपल जैसे आप जा रहे हैं यहाँ से किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप फुटपाथ पे गुजर रहे हो, प्रोटेक्शन नहीं लगाया हुआ, ऊपर से आगे ब्रेक आपके ऊपर गिरी तो वो आपको छूती चली गई तो वो इंसिडेंट में काउंट होगा या नियर मिस में। अगर वो आपके कंधे या सर पे पड़ रही तो वो एक्सीडेंट में काउंट हो जाएगी। ये इसकी सिंपल एग्जांपल है मैंने। हमारे यहाँ तो फॉलो नहीं करते, बहुत कंट्रीज में जहाँ भी सेंसिटिव होती है इसको बैरिकेड किया जाता है। अच्छा जी, क्या क्या इसका प्रॉब्लम में आ रहे हैं? डिलेड हैजर्ड डिटेक्शन, इनकम्प्लीट डेटा कलेक्शन, डेटा का पता पूरा नहीं होता, ह्यूमन एरर ऑलवेज इज देयर, इंसान खता का पता है, गलती जरूर करता है। फिर क्या कंप्यूटर गलती करता है? हाँ यस, किसने कहा? कर सकता है, पॉसिबिलिटी इज देयर, पॉसिबिलिटी इज देयर, पर 99.999% of cases उसमें सीरियल जज मिसता है। Human error in monitoring and reporting can lead to overlooked hazard and safety risks. ये इंसान difficulty predicting risk क्या हो सकता है, लेकिन somehow artificial intelligence आपको पहले से बता देती है और से आपका 99.99% एक्यूरेसी होती है, लेकिन क्योंकि वो भी इंसान की बनाई हुई चीज़ है तो कुछ हो सकता है। फिर हमें क्या चाहिए? नीड फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। चैलेंजेस क्या है हमारे? सेफ्टी फेस न्यूमरस चैलेंजेस रिक्वायरिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी सोल्यूशन चाहिए। रोल ऑफ आईटी टेक्नोलॉजी क्या है? Integrating AI help in faster and more accurate identification of safety risk. Enhance safety management, advanced technologies improve overall safety management and help prevent workplace accident. ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज होता है। जैसे मैंने आपको कहा, all the person have a right to return home safe. ये सबसे फंडामेंटल चीज है। Therefore, artificial intelligence offers transformative potential for OHS by automating hazard detection, analyzing large data set, and predicting risks before they materialize, thereby improving safety outcome. ये चीज है। अच्छा जी, ओवरव्यू ऑफ AI टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू OHS क्या है? मशीन लर्निंग फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, इसके में बाइफिकेशन हो गई है। तो
Machine learning helps identify pattern in safety data to predict and prevent workplace. Right? Computer vision applications, computer vision analyze images. Images है ना पहले देखा है स्लाइड है तो फर्स्ट स्लाइड जो मैंने आपसे पूछा क्या है इसके अंदर वो एक इमेज था हमें टाइम मिले उसको डिस्कस कर लेंगे ठीक है वीडियोस टू मॉनिटर सेफ्टी कंप्लायंस एंड डिटेक्ट हैजर्ड इन रियल टाइम इन रियल टाइम कैच किया यहाँ पे रियल टाइम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग Natural language processing interprets safety reports and communication for better hazard understanding and response. ये हमें हेल्प करता है मशीन लर्निंग में. की कॉन्सेप्ट क्या है? मशीन लर्निंग है, कंप्यूटर विजन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है जो हमने देखा था पीछे. मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स क्या है? अलाउस द सिस्टम टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. ठीक है. कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन क्या है? कंप्यूटर विजन ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ विजुअल हैजर्ड इन वर्क प्लेस इन्वायरमेंट जो शुरू वाले पिक्चर में था. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनालिसिस जो टेक्सचुअल डेटा होता है आइडेंटिफाई करता है एक्सट्रैक्ट कर लेता है उसमें से वर्क प्लेस के इनसाइड आपको देता है. सॉरी फॉर कम्युनिकेशन बिट फास्ट. मैं तो बहुत रिलैक्स था 3 घंटे का है. अभी उन्होंने बताया नहीं 2 घंटे में खत्म करना है आपने. हमारा और भी प्रोग्राम है तो मेरे ऊपर बहुत शेयर कर फिर दिया. Okay. So, therefore, AI-powered risk identification method. ये है इसलिए. Provide innovative ways to identify and manage risk, combining sensor data, जो sensors में लगे हुए हैं, analytics जो उसको analyze करता है, and automation to improve hazard detection and real-time detection using AI-driven sensor and cameras. ये चीज देखिए आप यहाँ पे सेंसर्स कैमरा रियल टाइम के कंटिन्यूस एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग. मैंने आपसे कहा HSE हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट एक ही वो है. हम प्याला हम नवाला है सारे ठीक है जी. तो AI सेंसर एंड कैमरास कंटिन्यूसली स्कैन एनवायरमेंट. ये जो लगे हुए हैं कंटिन्यूस स्कैन कर रहे होते हैं एनवायरमेंट टू इंश्योर रियल टाइम सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड हैंडलिंग. बेसिकली जो हमने सीखा था आज से 30-40 साल पहले उसमें ये था कि ये आप जब आएंगे तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी. फॉर एग्जाम्पल आप कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, क्या एक बड़ी बिल्डिंग है, क्या कोई बड़ी फैक्ट्री है या यूनिवर्सिटी है, तो आपकी जिम्मेदारी है आप में हेल्थ सेफ्टी की. तो आप क्या करेंगे? व्हाट यू आर गोइंग टू डू? Safety first or Prevention methods. safety is first or must? First action क्या होगा जब आ रहे हैं सुबह? Anyone? हाँ जी. नहीं घर से बाहर निकलते सबसे पहले क्या करते हैं? हाँ? मोबाइल पे देखते हैं जी. आज रूटीन पढ़ते हैं और सेफ्टी माशाल्लाह नहीं अच्छी बात है. वैसे माजरत के साथ कोई बुरा ना माने तो मैंने एक क्लिप आया था मेरे पास उसमें नाम ही हो सकता तो उसने कहा आदमी को भाई जब घर से निकलो सफर में तो 3 दफा ऐसा कुछ करता तो लेना आप तो गाड़ी डाले में बैठे 4 गाड़ी बैठ कर देंगे. ठीक है सर. तो यानी बताने वाले को भी तो बिलीव होना चाहिए ना. मेरा कहने का मकसद है सर आप उसको इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे मुंह की कान को बांधना है ना फिर जाके अपनी उज्जत तो तमाम करनी है ना. अगर तुमने रिस्क ले लेना है और रिस्क में नजर आ रहा है तो दुआ बढ़ के चले जाए तो गलत है. और आ रहा है नजर आ रहा है ना लेकिन उसने वो बताया और खुद इसका उन्होंने वो एक पाँव बांध लिया और 2 गाड़ी उठा लिया तो भी क्या. अच्छा जी. चलिए सबसे पहले जब आप आते हैं ना वर्क प्लेस पे तो आप देखते हैं विजुअल इंस्पेक्शन करें.
बिफोर एंट्रिंग, जैसे गेट पे आते हैं तो आप देखते हैं, आप घर भी पहुंचते हैं ना, घर पे देखते हैं यहाँ पे कोई मोबाइल चीज नहीं खड़ा हुआ, यहाँ से बाहर निकलते तभी ऐसा नहीं देखते ना, खड़ा होता नहीं जरूरत बनी मोबाइल लेते आपसे। तो वर्क प्लेस पे जाते वक्त सबसे पहले आप व्यू इंस्पेक्शन करते हैं कि भाई, और अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है कि हमारा दिमाग सेंस कर लेता है समथिंग अनयूजुअल, yes there is something unusual नॉर्मल रूटीन में नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कंटिन्यूस इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, सेफ्टी मॉनिटरिंग, पर्सनल सेफ्टी मॉनिटरिंग, सारा उसी में आ जाता है। So therefore all sensor and camera continuously scan environment to ensure real-time safety monitoring and hazard detection. Hazard condition detection क्या है? AI technology detects unsafe behavior and equipment malfunctions promptly to prevent accident. वो equipment को भी कर देता है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसने ये स्प्लिट करा हो, तो नॉलेज मुझे बताइए जरूर, जिसने सेफ्टी के लिए रियल टाइम मॉनिटर्स वो लगाए हो और डिटेक्ट करता हो, मेरी नॉलेज नहीं है। इसमें तो कॉमन चीज़ है, ये तो सर आप सिगरेट जलाएंगे क्यों क्यों शुरू हो जाएगा, और हमारे देसी लोग क्या करते हैं, बाहर बैटरी निकाल देते हैं ताकि वो सारे भूल रहे होते हैं तो उसको शुरू हो जाता है बजाना, और फायर ब्रिगेड वाले पहुंच जाते हैं, 500 रुपये का जुर्माना आप करके चले जाते हैं, 500 रुपये दिन $500, इसलिए वो बैटरी निकालना भी जरूरी है। अनसेफ एक्ट तो है लेकिन जरूरी है। आ जाएगा मेरे ख्याल कोई इंडस्ट्री लगा लेगी या किसी लगा लिया हुआ। ओके, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, ये मेन चीज़ है जो उसमें वो एआई करता है। आइडेंटिफाई इमर्जिंग रिस्क, ये जब एनालिटिक्स करता है किसके लिए? इमर्जिंग रिस्क के लिए। डेटा ड्रिवन रिस्क प्रिडिक्शन, डेटा के ऊपर बेस करता है, और यहाँ आप देख लीजिए AI model use historical and real-time data to forecast possible future hazard. वो फ्यूचर के लिए बता सकता है कि क्या हो सकता है। ठीक है, proactive risk mitigation, enable organization to take proactive measure and prevent potential harm. जो हमारा ओके जी, ऑटोमेटेड इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड रूट कॉज एनालिसिस, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रखती है हमारे जो भी सेफ्टी एनवायरमेंटल है, क्वालिटी है, सब में एक चीज बहुत है, रिस्क मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, रूट कॉज क्या था, वजह क्या थी। ठीक है, Quick incident reporting. AI enables rapid and precise incident reporting by automating data collection and documentation process. फिर उसमें रूट कॉज एनालिसिस आ जाती है कि क्या वजह थी, क्यों है, और उसके अंदर वैसे तो हम ट्रेडिशनल फिश बोन डायग्राम और दूसरी चीज़ें यूज करते हैं उसके लिए, लेकिन अब ये जब आ गई चीज़ तो उसमें देखते हैं क्या होता है आगे। AI analyze complex data. Your data is what identify the underlying causes of incident for better. कहीं वो रिपीटिशन का वर्ड भी हो जाता है तो दो है। Improve safety intervention जो है insight from prevent analysis help implement more effective safety intervention and prevent reoccurrence, तो आपको हेल्प करता है। Therefore, examining practical AI application in various industries highlights the tangible benefit and lessons learned from deploying these technologies in occupational health and safety. इसलिए आप लर्न करते हैं जो आपने देखा है, और हम भी लर्न करते हैं, लेसन लर्न करते हैं। वैसे दो दुनिया के मेजर एक्सीडेंट जो सेफ्टी में नंबर 1 है और इन्वायरमेंटल में भी नंबर 1 कौन से, कोई बता सकता है? मुझे तो लगता है ये स्पेशली द वेदर कंडीशंस जो हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। भोपाल का
सुना कुछ बात है व्हाट हैपेंड इन भोपाल भोपाल रेलवे स्टेशन इंडिया में केस की यस उसको लेकिन आप सर्च करेंगे तो सेफ्टी में नंबर 1 पे रहेगा और एनवायरमेंटल में भी नंबर 1 पे रहेगा जर्नल में उससे अच्छा नंबर उसके बाद हाँ ये दो है टॉप पे वैसे और बहुत से हैं ठीक है वो शिप का जो था वहाँ पे उसका है ये अपना अल्फा बाबा प्लेटफॉर्म का क्या था नाम वो जो यूके में ऑयल रिग थी वो सी में थी तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट था वो भी ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको क्योंकि हमें पता नहीं होती बहुत चीज़ें भूल भी जाते हैं लेकिन आपको मिल जाएगा सर्च करेंगे आप मिल जाएगा जो ब्रिटेन वाले बहुत बड़ा था उसमें काफ़ी लोग हैं कंपनसेशन की कॉस्ट भी काफ़ी देनी पड़ी थी भोपाल में प्योर नेग्लिजेंस प्योर ह्यूमन नेग्लिजेंस आराम बंद कर दिया गया लोगों को वार्निंग नहीं गई गैस लीक थी 100% ठंडा बहुत तो हम मान सकते हैं भाई हो गया लेकिन वहाँ तो नहीं मिली जैसे जिसमें जरा नहीं था ओके जी टाइम के और भी बताएगा बहुत देर एक घंटा बहुत है वैसे वेस्ट में नेक्स्ट 1.5 घंटे लगाना पड़ता 1.5 घंटे बाद ब्रेक लेते फिर 1.5 घंटा होता है 3 घंटे में लेक्चर स्टार्ट होता है काफ़ी टाइम चाहिए हमारे यहाँ डिफरेंट है बाकी मैं ज़्यादा मैं देता हूँ 3 घंटे बाद 1 घंटे का ब्रेक देता हूँ ऑनलाइन भी 3 घंटे में होता है तो 15-20 मिनट का ब्रेक देता हूँ Okay, sir. Example from manufacturing and construction industry. क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? एक तो आप देख रहे हैं क्या नजर आ रहा है आपको? इंडस्ट्री हाँ ये इंडस्ट्री आप दिखा रहे इंडस्ट्री के अंदर काम हो रहा है इक्विपमेंट सेफ्टी मॉनिटरिंग ALI सिस्टम जो है कंटिन्यूसली मॉनिटर मशीनरी टू इंश्योर ऑपरेशनल सेफ्टी प्रिवेंट ब्रेकडाउन और वो आपको पूरा मशीन को प्रोटेक्ट करते हैं वर्कर एर्गोनॉमिक्स ट्रेंड ये क्या है एर्गोनॉमिक्स क्या है हाँ कोई बता सकता है एर्गोनॉमिक्स क्या है यही मैं आपको फ्लाइट सर्विसेज में Yeah, I'm working in practice. What do you do basically? Ergonomics आपको सर्विस और फ्लाइट सर्विसेज में बिल्कुल आपका Actually, if it is another word, I can understand. But it's a typical word. I'm sorry, I'm not. ये physical activity, physical posture है क्यों करते हैं? posture safety. लेकिन आप how you are working, कितने hours बैठ के काम कर रहे हैं और खड़े होकर काम कर रहे हैं, lifting कर रहे हैं, bending है, twisting your arm, frequent movement of your arm, like use के समय है. बस के 3 point. तो ergonomics human physical posture and activities. अगर मैं किसी को आपको कहूँ कि भाई ये चीज उठाओ तो कैसे उठाएंगे? You have to bend our knees first. Right. And then Close, the same movement you have to stretch. Chest here, तो आपको हम यूं करके यूं उठाना तो आपके like this stretch. तो इसकी ergonomics से डील करता है कि आप नोटिस का काम करें. लेकिन जैसे ठीक है, we really should appreciate those who are working in a flight, especially in the long haul. बहुत सारे रहते हैं बेचारे, हम appreciate नहीं करते. लेकिन we should appreciate that. क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन का जो ठीक है 2-3 घंटे जो 14 आवर्स के लिए यहाँ से कनाडा और अमेरिका उसमें अलग डबल क्रू होगा लेकिन फिर भी स्ट्रेस और स्ट्रेंथ दोनों है. ठीक है सर, ओके जी. So worker ergonomic tracking ALI analyzes worker movement
to optimize ergonomics and reduce strain related injuries and workplace. अब से ये एक टॉपिक है ना, इसका पूरा लेक्चर हो सकता है, ठीक है, जितने भी है ना इनका पूरा एक कंप्लीट लेक्चर होता है। ये समझे कि यहाँ पर खत्म हुई दुनिया, दुनिया आगे बहुत है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, ठीक है। ये हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, हैजर्ड तो मैंने आपको बता दिया क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन है सबसे बड़ा टास्क है, हाउ यू फाइंड इट। अब मुझे नहीं मालूम बीबी हैजर्ड है, मियाँ हैजर्ड है, I don't know who is the hazard. No. Then first you classify. Identification करनी पड़ेगी. Who is the hazard? So anyway, so artificial intelligence detects potential hazards. अब इसको हम यूज कर सकते हैं होम में शायद, in dynamic environment to enhance workplace safety and prevention. ये भी है. Let's hope for best. तो क्या हो गया बेचारी को? स्ट्रेस दोनों, ठीक है ना। AI ergonomics and worker has monitored. Posture assessment. AI system analyze worker posture in real time to identify harmful position. अच्छा ये fatigue वो है, detect sign of fatigue to reduce the risk of accident in health indicator monitoring. Right, what? So health indicator monitoring. Injury prevention. अच्छा मरीज से बताओ, अभी उस दिन मुझे डॉक्टर ने ना, मैंने टेस्ट वो हाँ लिपिड प्रोफाइल में टेस्ट कराया था, तो ऑनलाइन मैंने रिपोर्ट दी। अच्छा पहले एक कराई थी सिमिलर तो जो समझ नहीं आते मैं आप ऑनलाइन कराया, रिपोर्ट में कॉपी की और उसमें डाल दी और चेक जीपी उससे पूरा इंजेक्शन दे दी और फाइव हमने डॉक्टर को कहेंगे 2000 रेफर का उसने पढ़ के आराम करने को वॉक करो डाइट को देखो बस कोई मेडिसिन नहीं होगी डॉक्टर नहीं है। अरे इस चीज़ हमें आइडिया मिल जाता है अच्छा बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर है ना, ये चीज़ अच्छी कम से कम हमें भी पता पड़ जाता है क्या फैक्टर है इसके अंदर। तो ये चीज़ मैंने उस पिक्चर के साथ तो मुझे जहन में आया नहीं, जब मैंने डॉक्टर को भेजा था तो उसने ये उससे भेजने पहले मैंने उसको चैट जीपी में डाला था, तो मैंने इस पिक्चर को डाला, मुझे बताया इस पिक्चर के अंदर क्या है चीज़ जो है आदमी को बिल्कुल फ्रेंकली बतानी है मैंने कहाँ से लेकर आती है क्या से क्या है, इसलिए आप पेपर लिखते नीचे रेफरेंसेस देते हैं कि आपने कहाँ से चीज़ दी है, वरना आजकल वो कौन सा है उसमें दालसा बताया था आपने कहाँ से कॉपी की है वो बता देता है सॉफ्टवेयर वो 2061 इन कनाडा मेरे भाई पढ़ी जाती चाइल्ड एजुकेशन कोर्स वाले जिससे मुझे कहा असाइनमेंट में हेल्प कर तो मैंने नेट से उठाया डाल दिया उसने टर्मिनेट में डाला शी वाज फेल ने फेल कर दिया You from the reference नहीं डाला था, फिर to give the reference। तो मुझे बड़े क्वेश्चन लगी तो मुझे फेल करवा दिया, तो मैंने बस हेल्प करा तो तुम्हारी मैं क्या करूँ? Copyrights हो रहा है। Okay, so posture assessment, fatigue reduction, health indicator monitoring, injury prevention, ये चीजें और AI driven insight help prevent musculoskeletal injuries. What is this word? ये आपका physical posture जो होता है ना ये उसको वर्ड ठीक है, ये by promoting safe work habits. Successful outcome and lesson learned. ये क्या आजकल बहुत कुछ चल रहा है ना 5G, 4G, 3G क्या था कहाँ से शुरू हुआ था? ये आपके हाथ में चीज है ना सर, ये क्या है? ये पहले ऐसी क्या था याद है कोई? नहीं उसका कॉल होगा क्या? हाँ और
The very first cell phone which I saw on picture, there was one MLA चौधरी साहब थे, उन्होंने लिया था, वो असेंबली में डायरेक्ट करके 2 आदमी थे, वो एक यहाँ से पकड़ा था, एक यहाँ से पकड़ा था, सेल फोन चेक हुआ था। तो मसला था बैटरीज का, तो वो पहला सेल फोन है जो पिक्चर में है। The first cell phone I bought it for I think 1996. किसी को ना बाहर घर पे ले गया था मुझे, मैंने फोन देखा था, walkie-talkie just like a walkie-talkie. मैंने उसको कॉल की, अरे भाई हमें इससे सर्वर नहीं मारना, मुझे ऐसी चीज दो जो मैं सांस लेके सिर्फ मोबाइल फोन में मकसद यही कि आप सांस लेके मूव कर रहे हैं। उसने सर मेरे पास एक फोन है, वो छोटा है साइड में क्या, लेकिन यूज है, मुझे देते हुए अच्छा। फिर उसके बाद वो मोटरोला का फ्लिप वाला है, बड़ा पॉपुलर था, तो बड़े स्टाइल से उसको ऑन ऑफ करते थे। Then I went to the Canada, I got small phone, मतलब अब फिर दोबारा बड़े फोन आने शुरू हो गए, उसमें टेक्नोलॉजी 1G 2G थी, पहले सिंपल फोन था, आप फोन आता था अच्छे से, आने की कॉल 10 रुपये मिनट थी, कॉल करना 12 रुपये मिनट, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों पे चार्ज हो दोनों पे चार्ज है, थाना नहीं पे चार्ज हो जाएगा। हाँ नंबर देख के पीटी से कॉल करना, ठीक है। तो ये था उसमें, फिर चेंजेस आती गई, फिर आपका SMS मैसेज आ गया, एक ही ऐड हो गई, हाँ पेजेस अलग चीज थी, वो तो छोटे से बीट करता था, आप देखते थे छोटा मैसेज आ जाता था, कॉल मिस्टर कॉल दिस रिपोर्ट दिस बीट दिस, वो अलग चीज थी, उसके लिए उनको पेजर वालों को बंद करना है, वो वहाँ से मैसेज आ रहा था आपको। वो एक्चुअली शुरू में अमेरिका और वेस्ट में मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर्स यूज करते थे, इमरजेंसी में कॉल करने के लिए उनको बड़ी अच्छी चीज को जमाने के लिए बहुत ही अच्छा है। वो थोड़ा था, फिर बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और हमारे पता नहीं क्या क्या कुछ फोन किया था, दिस इज क्या इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है सारी चीजें। ओके जी, सक्सेसफुल आउटकम एंड लेसन लर्न क्या है, क्या हमने लेसन लर्न करते हैं, डू वी लर्न द लेसन, असल सवाल ये है। सर अब आपसे सवाल पूछूंगा, डू वी लर्न द लेसन? We are actually learning the lesson basically, and if you see back to our history, we never learn from our mistakes. So I cannot claim anything actually. I'm not in a position. Basically, few people learn the lesson through ignore it. ये आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो ये एक्चुअली हर चीज से आपको लेसन जरूर मिलता है, आपको लर्न कर लिया, उसके आप लोग के ऊपर जो लेसन लर्न किया, यू हैव टू थिंक ओवर इट, it should not happen next time. So preventive measures, corrections they need. So actually, अगर मैं कौन सा बेसिकली मैंने जिक्र किया था कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा जो असेसमेंट होता है, एनालिसिस होता है, वो भी ये लेसन लर्न से ही हम लोग लेते हैं, फिर आगे कंट्रोल्स वगैरह लगाकर हम उसको देखते हैं। तो मैंने जो शुरू के इंट्रोडक्शन में सुना कि ज़्यादातर लोग बायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो हमारे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में इंडस्ट्री में बायोलॉजिकल हैजर्ड्स के ऊपर बहुत होता है। तो ये इंडस्ट्री में बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो आप स्टूडेंट से के हवाले से आप थोड़ी सी राय लें कि बायोलॉजिकल हैजर्ड्स को किस तरह देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं कि आगे इंडस्ट्री में ये हैजर्ड्स बहुत क्लियर है। सर मैं उसमें कह दूँ कि बायोलॉजिकल हैजर्ड में आपका फूड है, सर हर इंडस्ट्री हर जगह पे एनवायरनमेंट की बात तो वो तो वाले है, लेकिन मैं सिंपल एग्जांपल फूड हम खा रहे हैं, बहुत आसान, मतलब आसान कर रहा हूँ चीज को, उसमें हैजर्ड में मतलब केमिकल, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, फिजिकल हैजर्ड्स ये है नहीं है, you cannot ignore that. But we have to identify for of course, हर जगह identify. बायोलॉजिकल हैजर्ड क्या है, केमिकल हैजर्ड्स क्या है, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स क्या है, फिजिकल हैजर्ड्स क्या है, ये तो आपने लर्न करने हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी या HSC हर सब उसको कोर्स होना चाहिए, हमारे यहाँ नहीं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मेरे ख्याल में क्या यूरोप वगैरह में पढ़ाया जाता है, तकरीबन तो कंपल्सरी है वहाँ कि ये एक सब्जेक्ट वहाँ कर दिया गया है। तो हमारे अभी तक ये अवेयरनेस नहीं आई है, इवन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में भी
ये लगभग आपको काफ़ी आइडिया है, लेकिन तो ज़्यादातर जैसे इंडस्ट्री से इंडस्ट्री में ज़्यादातर इंजीनियर्स होते हैं और टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, तो सर मॉडल ऑफ रिलेटेड हमारी जो आरडी ऑर्गेनाइजेशन है अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन डिपार्टमेंट बीसीएस है, तो मुझे यार क्या पता है ये चीज़ है। Anyway, let's go forward. Successful outcomes and lesson learned. Reduce safety incidents. Incident means आप बच गए. AI implementation is occupational health and safety leads to notable reduction in workplace incident and accident. Improved compliance. अच्छा ये सबसे बड़ी important चीज़ है. Where we lack. Normally we do not comply with the rules, regulations, SOPs. हम उसको इग्नोर करते हैं. Compliance को तो omit करना चाहिए. ठीक है. AI facilitate enhance adherence to the safety regulation and compliance standard across. अब हमारे सर what are the standards? जी ना कोई बताएगा standards क्या चीज होती है? Safety operating procedures. Anyone? आपके मेजर्स होते हैं कि आपने अकॉर्डिंग टू दिस मेजर्स यू हैव टू डू. जी बेटा आप स्टूडेंट में सबने बताया स्टैंडर्ड क्या होता है? एक रेफरेंस सेट करना, इससे कंपैरिजन करना, उसके मुताबिक बराबर. सही. बेसिकली स्टैंडर्ड आर द गाइडलाइंस. ठीक है. स्टैंडर्ड जो होते हैं गाइडलाइन होती है, वॉलंटरी होते हैं, आप उसको फॉलो करें. रूल्स एंड रेगुलेशन मैंडेटरी होते हैं. जो भी कोई आपकी अथॉरिटी होती है जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, हमारा ओशा का डिपार्टमेंट नहीं है, लीगल डिपार्टमेंट हमारे यहाँ वही देखता है सेफ्टी. और वो क्या देखता है, वो अपना वो देखता है सर. ठीक है ना. तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना होता है. स्टैंडर्ड ये कि आप कंपेयर आपकी इंडस्ट्री है, आपकी इंडस्ट्री है, आप में दोनों में कंपटीशन है, तो आप एक मायार अपना करते हैं. ये हमारा क्वालिटी का स्टैंडर्ड है. फिर आप बोले हमारे ये वर्कर्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा ये सेफ्टी का स्टैंडर्ड है, हमारा लीड इन्वायरमेंट है, तो हमारे इन्वायरमेंट का स्टैंडर्ड है, और वैसे भी सफाई निर्माण है. तो ये सारी चीज़ें आपने वो कंपनी में वो आप वॉलंटरी करते हो अपनी मार्केट बढ़ाने के लिए. हमें sometimes you meet the compliance the regulatory authority. चंद अदारे होते हैं जो compliance में जाते हैं, मेजॉरिटी जो है वो हाइड करते हैं. वो टॉपिक चल रहे हैं और आगे चलते हैं. Therefore, improve compliance. AI facilitate enhance adherence to safety regulations and compliance standard across the organization. Data driven decision making. आप डेटा के ऊपर डिसीजन करते हैं. तो कोई फैसला करने से पहले आपको कुछ फैक्ट और फिगर्स चाहिए होते हैं. तो हम साइंटिफिक लैंग्वेज में डेटा कहते हैं. Enhance data analytics also through AI support better decision making in occupational health. अब आप मैन्युअली करते हैं, अब आपने उसके मशीन लर्निंग से हेल्प ले ली तो आपको बेहतर लगेगी. इंटीग्रेशन चैलेंज. अब आपने इंटीग्रेशन करना है. ऑर्गेनाइजेशन फेस चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग एआई टेक्नोलॉजी एंड अडॉप्टिंग देयर वर्कफोर्स. अब किस तरह आपने इसको ट्रेडिशनली हमने ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमने अपने वर्क प्लेस में एआई को किस तरह, जिसमें हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की बात कर रहे हैं, अब एआई को किस तरह करना हो सकता है किसी अच्छी इंडस्ट्री ने इसको अडॉप्ट भी कर लिया. मोस्टली जो अपना ऑयल एंड गैस में डील करते हैं वो ज़्यादा फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड्स को, रूल्स रेगुलेशंस को कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज. मेरे के यहाँ मल्टीनेशनल भी होती है, वो करते हैं. मल्टीनेशनल पास एक्सपर्टीज भी होती है ग्लोबली और फंडिंग भी होती है, तो दे कैन डू बेटर देन अस. Okay, sir. Let's move to the next. So, future direction and ethical concept. चलिए ये सबसे बड़ी चीज़ है. हम जो इंफेसिस होना चाहिए वो एथिक्स पे.
be like that. Looking at ongoing AI advancement promise further improvement in workplace safety, but it is critical to address ethical issues like privacy, data security, and role of human oversight. जी हाँ, कोई कमेंट्स इस पे? जी बेटा, क्या करेंगे बायोलॉजिकल साइंस में? तो आपने मेजॉरिटी बायोलॉजिकल साइंसेस में है, वो विजन किया है सारे बायोलॉजिकल साइंसेस में जा रहे हैं. फिजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस में कम है. इंटरेस्ट या भेड़चाल मेरी पड़ोसन चली गई, मैं भी उसी चली जाऊँ. तो एक ये भी तो था हमारे यहाँ, तो मेरे दोस्त ने ये कर लिया, मैं भी ये कर उसके साथ नहीं होता है. मेजॉरिटी होता है. तो हम लोग मैट्रिक में पढ़ रहे थे, तो सारे बच्चे साइंस में जा रहे थे. तो हमारे इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने होमवर्क तो क्या सारे साइंस आर्ट्स को ही पढ़ेगा, साइंस पढ़ के क्या करोगे? फिर 4-5 लड़कों ने जाके उनके मोटिवेशन पे ह्यूमैनिटीज आर्ट्स में चले गए थे. फिर हमारे उस जमाने में भेड़चाल थी, या डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना, बस और कोई नहीं था. फिर तीसरी नो थर्ड ऑप्शन, ठीक है. और उसके बाद एक चीज आई MBA. अच्छा, MBA ऐसे मशरूम ग्रोथ हुई कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटी की MBA. ये तो सिर्फ IBA था, कोई चीज थी. IBA का ग्रेजुएट उस जमाने में डायरेक्ट ग्रेड 1 बैंक में था. अब ग्रेड 3 भी मिल रही है. इतने MBA इंडिया के घूम रहे हैं. अब तो हर सब्जेक्ट हमने याद कर लिया, सिर्फ उसकी बात नहीं रहे. तो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, मैं उसमें कहता हूँ हर कॉलेज में चाहिए, लेकिन एक हयात. अच्छा जी, let's go. So, what potential advancement in AI for occupation health and safety क्या होनी चाहिए? Sophisticated predictive models होने चाहिए, prediction करे. Advanced AI predictive models can foresee potential hazard and prevent workplace particularly enhanced sensor network लगे हुए यहाँ. Improved sensor network will collect real-time data to monitor and ensure occupational safety. AI and IoT. What is IoT? Internet of Things. Greater AI integration with IoT devices enables comprehensive and automated safety management solution. तो ये आजकल काफ़ी चीज़ें आ गई जो आपने देखनी पड़ेगी. वो थोड़ा मेरे ख्याल में हम लोगों को भी अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए. वैसे तो काफ़ी पुराना हो गया है हमारा भी सॉफ्टवेयर. और इसमें आप देख रहे हैं एथिकल चैलेंजेस है, डेटा प्राइवेसी है. और डेटा प्राइवेसी आपके सेल फोन के अंदर भी आप देखते हैं, आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑनलाइन है तब भी आप देख रहे हैं, फेसबुक पे भी आप देख रहे हैं. तो डेटा प्राइवेसी हर जगह है. एम्प्लॉय डेटा प्राइवेसी, अब बात हो रही है एम्प्लॉय की. AI system collects sensitive employee data, raising privacy concerns that require strong protection and transparent policies. देखिए हम जो है हर तरह से डेटा रखते हैं अपने पास. अच्छा, जो और का बात जो है मेडिकल रिपोर्ट भी आपके पास होता है, क्या क्या he or she has gone through movies है. और अच्छी कंपनी, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, टेलीफोन नंबर को देते हैं कि यू हैव एनी कंसर्न यू कैन डिस्कस विद दैम. और अपने ग्रीवेंसेस भी बता सकते हैं, अपना डिस्कशन भी कर सकते हैं. ओके, टेकन हेल्प. तो आप हर चीज़ कॉन्फिडेंशियली में रखिए, देखिए. तो फिर वो है डेटा प्राइवेसी. हमारे यहाँ क्या है कि बेसिकली अगर आप किसी को रेफर करें साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ तो बोलता मैं पागल हूँ या
और इसमें नहीं मैं 3 years का बच्चा नहीं है मैंने ऐसे मैंने फालतू बात है ना मैं डायरेक्ट वो तो माइंड लग जाएंगे पूरा मियाँ बीवी दिस इज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को सिखा दो चाइल्ड इज हाइपर एक्टिव AHAD एक डिजीज होती है बच्चों में तो बच्चे बहुत ज़्यादा तो बच्चे जो बहुत ज़रूर से ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तो उनको प्रोजेक्ट और दूसरी मेडिसिन और देते हैं उसको तो फला दादाजी और मैं कहता तो शायद वो मसला ये कि हम लोग साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं देते साइकेट्रिस्ट तो बात की बात है साइकोलॉजिस्ट आपसे काफी देते हैं आपसे बात करता है डिस्कस आपका प्रॉब्लम उस पर डिस्कस करता है साइकेट्रिस्ट आपको मेडिसिन देता है ये फर्क ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट फिर बाहर बहुत कॉमन लोग जाते हैं रात को नींद नहीं है दूसरे को साइकोलॉजिस्ट को बता दिया जाता है रात को नींद नहीं है हमें नींद नहीं हम 2 बजे घर सो जाएंगे इसलिए होगा अच्छा जी Okay, जी. So therefore, all this AI system collects sensitive employee data arising out of privacy concern that requires strong protection and trust. Workforce surveillance. ये कौन चीज आ गई यहाँ पे क्या डेटा पे क्या वर्कफोर्स की सर्विलेंस. वैसे तो हमारे यहाँ सर्विलेंस कोई और ही करता है डाले वाले करते हैं ठीक है. Increased surveillance through AI tools can lead to the employee mistrust. अब ये चीज आगे ट्रस्ट की. If not managed with ethical guidelines. अब कंटिन्यू नजर रखेंगे तो वो समझेगा कि मेरे को भरोसा नहीं कर रहा. मैं तो श्योर हूँ मैं बेमान हूँ ठीक है. जॉब डिस्प्लेसमेंट रिस्क बड़ी चीज है. Criminal automation may displace क्रिएशन नेटवर्क ये भी डिसएडवांटेज है. ये वही कह रहे हैं ना इन फ्यूचर के इंसान की जगह रोबोट्स आगे काम करेंगे तो फिर क्या होगा जॉब डिस्प्लेसमेंट. वैसे भी एक चीज है वो उसको कहते हैं पॉपुलेशन वॉर. इट वुड बी और एनवायरमेंट सो रेफर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो पढ़ के देख लीजिए बहुत पहले किया वाकई ट्रू है. हमारे उसको हम बाहर नहीं सकते हैं हमारी पॉपुलेशन देखिए इस शहर की पॉपुलेशन इस कंट्री की पॉपुलेशन देखिए ये सारा जो हमारा और पॉपुलेशन. हम पहले कहते थे भूखा बंगाली अब वो हम चाह गए तो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया फिर बढ़ा दी हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही. ठीक है मैंने आंखों से देखा बंगाली में सब हैदराबाद थी ना आपको याद है डबल डेकर चलती थी ये चलती थी 40 पर राइट साइड मारता वहाँ से स्टार्ट होती थी गाड़ी खाते हुए घूम के हमारे जिया कॉलोनी से निकलते हुए दिखा हुआ है. जिया कॉलोनी के साथ ही बंगाली कॉलोनी बंगाली उसका डबल डेकर चलता था तो बैठे नहीं देते साइड में सीढ़ी साइड का वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन वाली और ये मैं आपको बात करता हूँ 60s की. फिर मैं शॉप में गाड़ी छोड़ के डबल डेकर ऊपर बैठने चेक करते हैं और हमारे जियो से जरूरत में जियो में रहता था तो वहाँ से आओ सामने नहीं करता तो सारा स्टाफ जानता था कि कौन है ये तो डिस्क्रिमिनेशन थी. ओके जी. वर्क प्लेस सर्विस चल रही है जॉब डिस्प्लेसमेंट आ गया. आगे चलते आगे क्या जाता है. अब आगे द रोल ऑफ ह्यूमन ओवरसाइट अलॉन्ग साइड और दोनों चीजें साथ साथ आ गई. एथिकल डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ी चीज है. ह्यूमन जजमेंट इज वाइटल फॉर इंश्योरिंग एथिकल डिसीजन व्हेन वर्किंग विद एआई सिस्टम इन ऑक्यूपेशन. अब यहाँ आपने दोनों चीजों को कंबाइन किया ह्यूमन भी ह्यूमन इंटेलिजेंस भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बोथ इंटेलिजेंस को आपने कंबाइन करना है. उसमें आपने डिसीजन क्या लेना है आपने एथिकल डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर्स.
interpreting AI insight, human interpret AI generated insight to make well-informed decision in workplace safety. Maintaining accountability. हाँ जी, ये बड़ा चीज है. हाँ, एक चीज कहता है आपको व्हाट्स अकाउंटेबिलिटी. Responsibility and accountability different things. आप जा रहे हैं, आप वर्क प्लेस पे बात कर रहे हैं, आपने कहा कि ये देखो लीजिएगा, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दी, कुछ भी हो गया, जिसको देखे गए वो जिम्मेदारी आप जिम्मेदार है, अकाउंटेबिलिटी आपकी होगी. अब उस बच्चे की अकाउंटेबिलिटी है. Okay, so you can delegate the authority, but you cannot delegate the responsibility over your accountability. Okay. Therefore, human AI decide to make well-informed decision in workplace safety management, maintaining accountability, human oversight. Ensure accountability and responsibility in applying are visible for outcome. ये भी बड़ी चीज़ है कि ह्यूमन ओवरसाइट जो है ना, आपने मिस कर दिया, लापरवाही कर दी, कुछ भी हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है, और यहाँ पे डिलीबरेटली किया हो. ओवरसाइट का वर्ड जब याद यूज है कि आप ओवरलुक कर गए. एक होता है डिलीबरेटली आपने इग्नोर कर दिया, जैसे भोपाल में हुआ. That was not oversight, deliberate था वो. अच्छा जी, वाह, खत्म हो गया. अच्छा जी, कैसा खत्म हो गया, जो होना चाहिए. It was supposed to be for 3 hours actually. हाँ? नहीं, वो आपने कर दिया थोड़ा सा. इन्होंने कहा बीच में आप थोड़ा सा गैप ले लें, 5-10 मिनट है, उसके बाद दोबारा रीस्टार्ट करो. हाँ, नहीं वो इसमें कोई AI लॉस तो नहीं. उन्होंने कहा आप ह्यूमन पे आप आ जाए, पैरेलल चल रहा था ना, उन्होंने कहा आप ह्यूमन पर आ जाए. मैंने मुझे कहा कि ये आया नहीं तो बोलने करना है. या फिर दूसरों को बोला है. हो सकता है कि वो टाइम यूजर से you are not supposed to be that fast पे आपने बहुत जल्दी. फास्ट तो मैंने कहा था, I have to go fast. तो ऐसा होता है, स्लो जाता है, आराम से डिस्कस करते हैं, बता जाए. अब जो मेरे ऊपर भी स्ट्रेस आ गया. इस तरह एक दफा हुआ कि मुझे फोन आया वहाँ से, मिला के हम रेगुलर सेक्रेटरी, ये प्रेजेंटेशन है आपकी. तो थोड़ा कंफ्यूजन वाले स्ट्रेस पे मैंने रिस्क मैनेजमेंट बना दी, बहुत ज़्यादा मैंने कर दी. स्ट्रेस मैनेजमेंट को देखिए आप, और मैं खुद स्ट्रेस में आएंगे, क्योंकि जो मैंने बना के लेके गया था वो रिस्क के ऊपर थी. अब फिर मैंने ढूंढा अपने उसमें कोई है रिस्क मैनेजमेंट के लिए चला. वो जहाँ स्लाइड चाहिए होती है बोलने के लिए, जो होता है स्लाइड से होता है, जो आपके पार्टिसिपेंट ऑडियंस होते हैं ना, थोड़ा क्लियर समझना है. आप बोलते रहेंगे जितना समझ में नहीं आएगा, जितना वो थोड़ा देखेंगे. वैसे भी होता है कि यहाँ जो भी आया लिखेंगे 50% तो या पर एक बार विजुअल जो होता है आपको ज़्यादा 25% रास्ते में, और कल सुबह मेरे सर के बाल की तरह आपके सर के बाल की तरह. लेकिन उसको अगर आप रिवाइज करेंगे तो सारा आ जाएगा, फिर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा. अब देखिए होना चाहिए यार, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए. क्रॉस लगे हुए.
कैसे नहीं हाँ जी थैंक यू टाइम क्या पड़ेगा 11:35 ओके नाउ वी हैव टाइम फॉर डिस्कशन अच्छा जी मैंने आपसे कहा था ना हम डिस्कस करेंगे स्लाइड 2 that picture yes that beautiful picture of a human and artificial intelligence interaction okay ji slide 2 of the presentation titled Role of Artificial Intelligence Transforming Health Safety Through Risk Education mentions several AI applications that are improving workplace safety. उसके अंदर बहुत सी एप्लीकेशन है इस पिक्चर के अंदर जो आपके पूरे उसको मॉनिटर करती है रियल टाइम मॉनिटरिंग भी हो रही थी कैमरास भी थे सेंसर्स भी थे एवरीथिंग वाज दैट इन दैट पिक्चर इसलिए मैंने आपको बता दिया सिस्टम में है क्या देखिए ठीक है तो वो सारा मॉनिटर कर लीजिए आपको फीडबैक डेटा दे दीजिए क्या हो रहा है क्या है AI-driven sensor and cameras. These technologies are used for continuous environmental monitoring to ensure real-time safety analysis. वो जो कैमरास और वहाँ लगे हुए थे जो सेंसर्स थे वो इसलिए थे उस पिक्चर के अंदर फिर क्या था उसमें प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स आपको बता रहा था क्या अपनी तरफ से क्या हो सकता है यह मॉडल यूज हिस्टोरिकल एंड रियल हिस्टोरिकल डेटा क्या था पहले क्या हो चुका था इस इंडस्ट्री में इस प्लांट पे इस साइट पे रियल टाइम डेटा क्या था आ रहा है अभी टू फोरकास्ट पोटेंशियल फ्यूचर हैजर्ड क्या हो सकता है allowing organization to take proactive measures to mitigate risk before the material. What do you mean by mitigate the risk? जब घर साफ कर रहे हैं तो आपने मतलब पड़ोसी अपना रिस्क वहाँ पे मिटिगेट द रिस्क को कम करना इसके लेवल्स होती हैं IRP और रिस्क में आप जानते हैं वो साइड है नहीं लेवल है 5 लेवल है ठीक है सबसे पहले के आपने इसको किसी तरह जान छोड़ा है शोर से या बिजली से जान छोड़ा सबसे बड़ा रिस्क है दोनों बोल रहा हूँ अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो तो रिस्क को मिटिगेट करें रिस्क क्या कहता है ऑटोमेटेड इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड रूट कॉज ये कुछ चीजें हम शुरू में डिस्कस भी कर चुके हैं AI enables rapid and precise incident reporting by automating data collection and documentation process. वो ना आपको डेटा मिल जाए और it also analyzes complex data. डेटा क्या है जो भी आपके पास एक से 10 जो भी चीजें हैं data to identify underlying causes of incident, leading to better safety measures and improved information. ये चीजें ये सारी इस पिक्चर के अंदर ये बात की समझी है. AI has several real-world applications in occupational health and safety, as highlighted. बहुत सी चीजें इसके अंदर हैं. These AI applications significantly enhance accuracy and efficiency. वो ह्यूमन से भर के accuracy और efficiency देती है. अंदाजा ह्यूमन माइंड से है लेकिन sometimes human mind is better than that, but efficiency of risk identification leading to the safer workplace environment. Equipment safety monitoring. AI system continuously monitor machinery to ensure operational safety and prevent breakdowns and accidents.
Worker economics tracking. AI analyze worker movement to optimize economic and reduce strain related injuries in workplace. असल चीज आ गई हमारी ये हैजर्ड हमने आइडेंटिफाई हुआ, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए? हाँ, प्रिकॉशंस क्या हो टू Prevention. आप इसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते उसे जांच होनी चाहिए. हैं? हाँ ऑब्वियसली. अच्छा, तो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन के होने के बाद आपने रिस्क मैनेजमेंट करना था, स्टार्ट करना है. ओके. Hazard identification, AI detect potential hazard in dynamic environment to enhance workplace safety and prevent the incident. Posture assessment. अब ये पेशेंट 1.5 घंटे से खड़ा हो, मेरी बैक तो बैठ गई है. Already I have a cervical problem. ठीक है. Okay. AI system analyze worker posture in real time to identify harmful position and suggest कि आप किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह आप मूवमेंट कर रहे हैं, किस तरह बैठे हैं, खड़े हैं, आपकी आँख किस तरह चल रही है, तो ये सारा भी वो डिटेक्ट करता है. वो आपको बहुत पूरा एक ही समय इंटेलिजेंस से दे आती है हमारा. ओके जी. फिर क्या करता है आपको? फटीग डिटेक्शन. यह डिटेक्ट साइन ऑफ फटीग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड इनएक्ट. ज़्यादातर एक्सीडेंट की वजह होती है फटीग, थकावट. बंदा जब थक जाता है, ओवरवर्क हो जाता है, तो फिर आस्ते आस्ते उसके अंदर नेग्लिजेंस आनी शुरू हो जाती है. तो ये शिफ्ट वर्क इसलिए रखा गया है ताकि वो आप बंदा को उस शिफ्ट पहले आप ब्रेक किए. टेक्निकली 8 घंटे की शिफ्ट पे आपने 2 टी ब्रेक देने और 1 लंच ब्रेक देना. ये क्वेश्चन ही है कि हम पता नहीं हम फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं. बाकी इमरजेंसी ब्रेक अगर वो चीज़ कुछ वॉशरूम ब्रेक और सो एयर बता दिया मैंने आपको डिटेक्शन का भी, फटीग का, हेल्थ इंडिकेटर मॉनिटरिंग, ओवरऑल आपकी हेल्थ कैसी है. AI tracks vital health indicator to monitor overall well-being and prevention. तो आपकी हेल्थ को भी वो आपकी फिजिकल कंडीशन को भी मॉनिटर करता है. ये इंजरी प्रिवेंशन में आता है. इनसाइड हेल्थ प्रिवेंट मस्कुलर इंजरीज बाय प्रोमोटिंग सिस्टम. वो बता रहे कि आप किस तरह से वापस कर रहे हैं उसको. What does future hold? अब एक सवाल है. फ्यूचर क्या है? राइट. डोम्सडे. जी सर. सर ऑप्टिमिज्म यही है हमारा फ्यूचर. जी कोई आप में से बेटा? Hope for the best. Hope for the best. अच्छा जी. सर एआई का फ्यूचर बहुत सारे इसमें कहता है कि ह्यूमन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे बहुत सारी वर्क प्लेसेस पर और वहाँ जो है वो एआई आ जाएगा. Already AI have taken place. जी. और सर 100% ऐसी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और हमारी ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है वो ये है कि वो उसके अंदर जो है वो चेंजेस आती रहती है कि आप किस एस्पेक्ट से सोच रहे हैं या किस तरह से उन चीज़ों को लेके चल रहे हैं. और अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो एआई डॉक्टर तो हो गए. नहीं सर वो हो तो गए, रिलाय आप कर ही नहीं सकते उनके ऊपर 100%. देखिए मैंने आपसे कहा ना कि मैंने जो ये लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट थी मैंने लालजी चैट में पूरा रेंज करके और मैंने डॉक्टर को भेज दी रिपोर्ट भी. तो सर एआई असिस्ट करने के लिए ना रिप्लेस करने के लिए थोड़ी वो वहाँ पे भी आपको असिस्ट ही कर रहा है डॉक्टर के पास इतनी बड़ी वो तो आ गई थी लेकिन मैंने उसको उसके भी कमेंट्स किए. जी. अरे देखिए बात ये कि एआई किसने बनाई? ह्यूमन बनाई भी तो ह्यूमन है ना. ह्यूमन ब्रेन ने बनाई है. नेचुरल ब्रेन. हाँ
जी बेटा। उसके बाद फर्दर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को क्रिएट करवा सकते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछ के इस तरह करके थ्रू मशीन लर्निंग। So far, with your AI creation created by human, they are replacing the human. Most of the fields. ये देखें ना, आप ही बनाई हुई चीज, ठीक है? और जिनके भी सांस भी बहुत थी, वो वाला हिसाब है। और वो इमोशंस और फीलिंग्स को भी पूरी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अगर एआई टीचर्स आ गए तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। लेकिन हाँ, ये तो चीज पता नहीं, नदीम साहब बताएंगे, एआई में पढ़ाएंगे नदीम साहब। वो जो स्कूल्स में आ जाए। इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है बेसिकली। हाँ। वो दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वो दूसरे मतलब वो जो हमारा वेस्ट है ना, जो बहुत आगे जा चुका है, ये सब वहाँ हो रहा है। अभी आप जितनी भी रिप्लेसमेंट देखेंगे वही है। पाकिस्तान में 70 साल से एक ही बस चल रही है, तो अभी हमारा बहुत आगे है। हमारा तो यही चल रहा है 1947 से। बच्चे भी वही चल रहे हैं। हाँ, वो 1947 में पहला एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, वो चल रहा है हमारे पास। वो बेसिकली तो ये एआई है, ये अभी अगर प्रिवेल करेगी तो वो वेस्टर्न कंट्रीज में अच्छा मैं अभी आई एम वंडरिंग स्टिल, आपने जितने सारे कॉन्सेप्ट किए कि ये अभी कॉन्सेप्ट्स ही हैं, ये रियलिटी बन चुके हैं। कि एआई के लिए इतना सब कुछ सोचना ये पाकिस्तान में तो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में तो टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो खासकर वॉर इंडस्ट्री है, अभी जो रिसेंटली 4 दिन का वॉच हुआ था, उसमें किसने नोट देखिए आपके इंटेलिजेंस रिलेटेड उसमें and we prevail on because the Chinese provided us some sophisticated technology. तो उनको पता नहीं है वर्ड को, तो वो हम यहाँ वेट से बाहर है, लेकिन what the provided by them was better than that. अच्छा ये so we can never entirely predict the future. वही बात आ रही है जो आपको कह रहे हैं, हम नहीं कर सकते। However, many leading experts talk about the possible future of AI, so we can make educated guesses. हम guess कर सकते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, I agree with you, आपके लिए इसका है, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी और दूसरी टेक्नोलॉजी में, वॉर इंडस्ट्रीज में, वॉरफेयर में काफ़ी जगह पे ये जगह ले चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी एक और चीज है, इट इज देयर हिज विल, he gave a human that skill to develop that, ठीक है, वो ना कुछ भी नहीं हो सकता। तो अभी कोई सवाल जवाब? हाँ जनाब जी बेटा क्या कह रहे हैं? सब गए? सर कह रहे हैं घंटा और दे दें, कह रहे 10 मिनट का ब्रेक दे दें और उसके बाद दोबारा बुला रहे हैं क्लास में। जी जी बेटा। सर ये ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें की डिफरेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंसान ने डिज़ाइन किया है, हमने ऐसे इज्यूम कर सकते हैं कि हमने कुछ गाइडलाइंस थे, कुछ गाइडेंस थी, वो एक मशीन को वो उस पे काम कर रहा है। लेकिन वो देखिए बिल्कुल हमने वही कहा ना कि God has given us something and we are living according to His will. तो हम बना रहे हैं वो चीज शायद हमसे बेहतर काम कर रही है, जो हमारी बनाई हुई चीज है। बहुत दफा जो है शागिर्द जो होता है उसका से ज्यादा तेज होता है, अच्छा नहीं बनता है, यही चीज में भी आ रही है। तो सर अगर हम एक चीज को डिजाइन करते हैं, होना तो ये चाहिए कि उससे ज्यादा कैपेबिलिटी और मेरी जो माइंड की पावर है वो ज्यादा होनी चाहिए। Well, still human have a control over it. Because sometimes they lose the control. तो हम तो थोड़ा फ्लैश हो जाते हैं, इग्नोरेंट हो जाते हैं, और उसकी वजह से बहुत से हमारे अंदर कुछ फैक्टर जिसकी वजह से लूज दैट कंट्रोल। और सर ये जो की डिफरेंस है मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस में और आर्टिफिशियल, ये क्या हो सकता है? की डिफरेंस क्या हो सकता है? देखिए आप
एक वीडियो इंस्पेक्शन करते हैं, एक कैमरा इंस्पेक्ट करता है। आप 24 घंटे सर्वेलेंस नहीं कर सकते, लेकिन कैमरा 24 घंटे सर्वेलेंस करता है। हाँ, ह्यूमन में वो फटीक की आ जाती है, लेकिन आपका बनाया हुआ कैमरा चल रहा है। आपने घरों में बाहर कैमरा लगाए हुए हैं, 24 घंटे चल रहा है। चौकीदार को 24 घंटे बैठ सकता है? अगर लाइट ना हो फिर से तो फिर आपने लाइट से ऑटोमेट की है, फिर आपने सोलर है, विंड है, यूपीएस है, तो आपने बहुत सी चीज़ है। क्लाउडी मौसम हो, क्लाउडी मौसम आप लगा दो, आप यूपीएस है, और अब तो छोटे छोटे विंडमिल्स आ गई है, 0.7 में नहीं आएंगे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो, 24 घंटे करती है। आजकल तो और के साथ प्रूफ कैमरास और कुछ हर चीज़ है कि तो देखिए तो ये ह्यूमन की बनाई हुई चीज़ है, ह्यूमन ने हर चीज़ को ह्यूमन इंटेलिजेंस है जिसे बनाई है उसको चलाने के लिए। जी बेटा सर, जो एआई वर्क करता है वो एक डेटा पे वर्क करता है। लाइक आपने एग्जांपल दी कि चैट जीपीटी को आपने लेवल प्रोफाइल दे, वो काम कैसे करता है? आपने उसकी मॉडल्स को ट्रेन, तो वो ट्रेनिंग जो है वो वक्त के साथ खत्म हो जाती है, उसको अपडेट करना। तो एट द एंड मैं इस बात पे सर की बात करूँगा कि जो a man who knows AI will replace the man without him। तो AI आदमी को रिप्लेस नहीं कर सकता, वो आदमी जो AI को जानता है वो उस पर्सन को रिप्लेस कर सकता है जो AI को नहीं जानता। AI कभी भी हमारी माइंड की क्रेडिट जल्दी पहुंच सकता है। बहुत मैं आपसे क्या कहा, ट्रेन मॉडल मैंने आपसे कहा डिफरेंस है ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल। ह्यूमन इंटेलिजेंस इज गिवन बाय द गॉड, आर्टिफिशियल इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन। तो ये चले सर, तो खत्म करें या आगे चलें? वही खत्म। व्हाट इज द फ्यूचर? ओके, what does future hold? We can expect see further adoption of AI by businesses of all sizes, changes in the workforce as more automation eliminates and creates job in equal measure, more robotics, autonomous vehicle and much more। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब तो ड्राइवरलेस गाड़ी भी आ गई है, ठीक है। इसको और सबसे बड़ी बात हम रोज यूज करते हैं मोस्टली वो एंड्रॉइड के अलावा वो मैप, वो और कभी भी मैप आपको घुमा भी देता है। 100% मैप पे डिलीवर कीजिएगा, समझे ना? वो गली वो जो नहीं पड़ेगा, वो मेन रोड पर तो सही है, लेकिन स्ट्रीट्स में वो आपको घुमाता रहेगा, ठीक है। ओके जी, सो कंक्लूड कर क्या है? AI is a transforming occupational health and safety by enabling enhanced risk identification and management. Embracing these technologies responsibly. The word क्या है? Embracing responsibly can lead to a safer workplace and healthier employees while addressing ethical consideration ensures sustainable adoption. इस वर्ड्स देखो ethical, embracing, responsibility और ethical, तो चीज़ों को आपने रखना है, एथिक्स को कंट्रोल में रखना है। हाँ जी, और कोई सवाल? नहीं? बायोलॉजी पे कैसे करेंगे आप? लैब में क्या करती है? सर बायोमेडिकल साइड में लाइक आपके बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर आ जाती है। लाइक मेरी डोमेन बायोकेमिस्ट्री साइड पे, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस अवेलेबल हैं जिसके अंदर आप प्रोटीन वगैरह की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आप जो है बैट लैब के अंदर 100% आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, बहुत सारी उसके अंदर जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। तो हम AI के थ्रू या फिर डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू जो उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर्स को, फिर उसको हम बैट लैब में जाके फिर फर्दर उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो आप देखें हर चीज़ आप जब कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो यू नीड सम काइंड ऑफ मशीन। अब वो चीज़ ज़रूरत है, मशीन कैसे ऑपरेट करती है? तो मशीन की अपनी इंटेलिजेंस है जो यूजुअली बाय द ह्यूमन। ये लैब में जितने भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो सारे वो आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट देते हैं।
तो वो ऑटोमेटिक रिजल्ट क्या है? तो इसमें मशीन लर्निंग हो गई, मशीन दे रही है आपको। ह्यूमन के उसको मिमिक किया था ना, न्यूरल नेटवर्क जिस तरह हमारे मौजूद है, न्यूरल नेटवर्क जैसा मौजूद है, तो उसके साथ ही तो बेसिकली ये सब्जेक्ट है ना, एआई तो होना चाहिए, लेकिन आर्टिफिशियल हेल्थ एंड सेफ्टी जो है और एनवायरनमेंट, ये हर करिकुलम होना चाहिए, कोई भी बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, इंजीनियरिंग हो, इवन सोशल साइंसेस में होनी चाहिए। तो हमको अपने सराउंडिंग को देखना है। आप वर्क प्लेस जो है ना, ये लिमिट नहीं है कि कोई इंजीनियर हो या साइंटिस्ट हो या नहीं, इट इज ओपन फॉर ऑल। वर्क प्लेस है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप एमए इंग्लिश है, यू वर्किंग इन ऑफिस, एर्गोनॉमिक का असर आप पे हो सकता है, वर्क प्लेस की सेफ्टी आप पे, स्लिप फॉल ट्रिप, ये सारी चीजें वो हो सकती है। तो ये नहीं है कि ये और स्पेसिफिकली और दिस पर, ये फील्ड सबके लिए, एवरीबॉडी शुड नो। कोई डिस्ट्रिक्शन नहीं, ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। कुछ आने के लिए मैं हमारी कॉम्पिटिशन है सर, कुछ आप आए प्लीज। मैं हाँ आ जाए यार। सर इंडस्ट्री से चालू करते हैं, तो दो अल्फाज। सर मैं अकेला खैर नहीं हूँ इंडस्ट्री से, और सर मैं बेसिकली माय नेम इज ताहिर एंड आई एम फ्रॉम गारमेंट सेक्टर एक्चुअली। तो बेसिकली मेरा मकसद ये था कि हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को तो बहुत पढ़ते रहे हैं, मैं बेसिकली खुद आयुष निबोश वगैरह को देखी। मुझे ये थोड़ा सा क्यूरियोसिटी थी कि एआई क्या रोल प्ले करने जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। और चले एआई का अभी तक तो मुझे ये लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली मेरा यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट ये बढ़ा कि यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स हैं बायोलॉजी, हमारे यहाँ अक्सर एक होता है रिस्क असेसमेंट, हम लोग असेसमेंट पे जोर देते हैं ना, क्योंकि हमें हैजर्ड तो पता होता है, लेकिन कई बार हमें नहीं पता कि इस कमरे में हैजर्ड है क्या, हमें पता नहीं है। अचानक खुदा ना खास्ता अर्थक्वेक आया तो क्या हैजर्ड है, बहुत ज़्यादा रेन या इस तरह कोई भी डिजास्टर्स सिचुएशन में क्या है। तो इसी तरह हमें एक बड़ी ऐसी चीज़ें जो इंडस्ट्री में जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, एम आई यूजिंग द वर्ड राइट फॉर हेल्थ, मुझे आइडिया नहीं है। तो हमें ये होता है कि हमारे जितने रिस्क जो असेसमेंट होते हैं, एनालिसिस होते हैं, उसमें एक होता है बायोलॉजिकल रिस्क। तो वो बेसिकली स्टूडेंट ही बता सकते हैं कि वो पढ़ते हुए बायोलॉजिकल रिस्क क्या क्या उनको आ रहे हैं, और वो उसमें फिर हम लोग कंट्रोल लेकर आते हैं। वो कंट्रोल भी कौन बता सकता है हमें, वो हमें वही स्टूडेंट्स या वही टीचर्स बता सकते हैं वहाँ पर। तो हमारे पास इंडस्ट्री गारमेंट्स की है जिसके अंदर ये कपड़ा डाई होता है, इसमें डाई एंड केमिकल्स यूज होते हैं। इसलिए हम लोग जब मेडिसिन में चले जाते हैं तो मेडिसिन होती है, इंजीनियरिंग में दूसरी साइड में, तो हर जगह एक रिस्क होता है बायोलॉजिकल रिस्क। बेसिकली मेरा थोड़ा सा मकसद ये भी था कि आप लोग अगर हैं तो इंडस्ट्री में या हमारे माशरे में जो जो चीज़ें, जो जो बिजनेसेस और जो एस्पेक्ट्स हैं इस तरह के, उसमें क्या बायोलॉजिकल रिस्क होते हैं, ये ज़रूर जानने की कोशिश करें और इसके ऊपर भी वो करें। मैं थोड़ा सा बैठने का मकसद था कि शायद मुझे यहाँ से भी कुछ फीडबैक मिलेगा, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन बायोलॉजिकल रिस्क में देखें, कोविड-19 बहुत बायोलॉजिकल। आप जो बर्गर खा रहे हो, पैरासाइट, फंगिसाइड, ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल रिस्क है जो हमारे डे टू डे वर्किंग में है, ठीक है। तो ये दीज आर बायोलॉजिकल रिस्क जो हमें डील करती है। जो भी वायरसेस हैं, जो भी हैं, वो आपके बायोलॉजिकल रिस्क। ये चीज़ ऐड में कर दूँ कि बेसिकली हमारे यहाँ जो, क्योंकि ये हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फील्ड होती है, ये अमेरिकन को और बाहरी काम करते हैं, उनके लॉज इसके हवाले से बायोलॉजिकल पर आपको पता है कि बहुत स्ट्रिक्ट है। तो इवन अगर एक बच्चे का कपड़ा सिल रहा है तो ये जो डाई एंड केमिकल में ये जो कपड़ा और ये जो निकल रहा है, ये जो यान यूज कर रहे हैं यहाँ से लेकर जो केमिकल्स यूज हो रहा है, वो उस बच्चे की बॉडी पर टच करने के बाद किस तरह से रिएक्ट करेगा, इसको भी हमें देखना पड़ता है। तो ये बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में भी आ जाता है, दोनों में आ जाता है। तो उसमें भी ये देखना पड़ता है कि जब इस कपड़े के साथ हम ये समझ लें पसीना टच करेगा तो इसका रिएक्शन कुछ और हो जाएगा, उस बच्चे का थूक अगर टच करेगा तो कुछ और हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में हम लोग सामना करते हैं। और सर आपके लिए तो वो आ गया ना
हॉलैंड से अकॉर्ड वाले अकॉर्ड इंटरनेशनल सब वो तो बेसिकली जी जी ओके मैंने उस पर भी प्रेजेंटेशन की थी एंड प्लेटफॉर्म पे ठीक क्रिस्टी से फ्रेंचिस नाम दो है जी अबाउट पाकिस्तान आ गया हाँ और पाकिस्तान आ गया जो इसमें खास कर स्पेसिफिकली इसमें है अपना टेक्सटाइल में वाइल जो ये अपना राना प्लाजा लगा किया हुआ बांग्लादेश में और बल्दिया वाला बनाया उसके बाद उन्होंने क्या जो ब्रांड्स के लोग जो कपड़े पहनते थे ना दे प्रोटेस्ट यूरोप these clothes are blood stained with the water. तो फिर उन्होंने क्या ब्रांड्स को मिल गए सारे तो ब्रांड से बैठ के मशवरे को उन्होंने बनाया अकॉर्ड इंटरनेशनल फर्स्ट तो हॉलैंड में बने उससे पहला अपना ऑफिस खोला वहाँ पे बांग्लादेश में वहाँ 3-4 साल उन्होंने अपनी ट्रेनिंग चला करवाई उसके बाद दे पाकिस्तान 2 सालों में पाकिस्तान आए हुए उनकी ऑफिस है यहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट ऑफिस साइड में और फिर नॉट एक्सपर्ट है टेस्टिंग हाँ so she knows me that's the bad news not चलो बैठो चलो सर थैंक यू वेरी मच फॉर कंक्लूडिंग रिमार्क्स लिए आप आ जाए सर मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा